Okay, meanwhile, everyone drop your favorite game because this is related to today's assignment. And we are ahead of the curriculum, जहाँ तक मैंने चेकआउट करा, and which is a good thing. We can learn more things in the 14-day time period. Keep dropping. Okay, COC. Anyone else? Drop your favorite games for the people who joined recently. बताओ यार, गेम्स वगैरह नहीं खेलते तुम लोग? Warhammer, okay. Elden Ring, okay. Hi Shubh, okay. Let me also join from my phone to view the chats, right? Okay. Cool. GTA Vice City, okay. Hello everyone. Meanwhile, people are coming. Drop your favorite game because that is related to the today's assignment. Okay. Shadow of Tomb Raider, okay. Anyone else? GTA 4, interesting. Haunted Dome, okay. Fire Ash. Okay. Fire Song, Climb Back. ओके, यहाँ से पता लगाएगा तुम लोगों को. रुको, इसको बंद कर दूँ यार मैं. ठीक है. cool. I guess everyone is here, but only 18 people today. Assignments भी कम आई आज and लोग भी कम आए. Admit Sujal Kumar. Let's wait 2 more minutes and then we will start. Candy Crush, okay.
Okay, 20 is a good enough number to start. I guess we can start the class. Uh, let's see. First of all, Happy New Year, everyone. And these are the assignments which we got submitted. All of them are very good. And but the number of assignments submitted today were less than the first one. Consider that each day the basically difficulty of assignments would be increasing, and I guess at least these 8 people who submitted today, 8 or 9 people will keep submitting till the last. Let's continue. If you guys have any doubts regarding the last class or the topics in the last class, you can drop them right now. Then we will proceed further. Any doubts? डाउट्स नहीं तो एनी जनरल टॉक यू वांट टू डू या कुछ भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड में भी बताओ. If you don't have any doubts or don't want to talk about anything right now, just give a thumbs up. Okay, interesting. But before starting the class, I would suggest you to turn the mic on to speak. ठीक है? There are no restrictions, and I would urge you guys to please speak in the class. ठीक है? So today we have 2 agendas. One is to understand navigation, and no mind. One I have to understand navigation, and one we have to understand list views and making lists. Right? 1 minute. Let me make this call open. Then we can continue. Sorry. Yeah. So anyone, can you tell me by thinking what do you mean by navigation here in context of a mobile application? Anyone? बताओ. Do you guys know what is meant by navigation in general? Okay. Okay, right, makes sense. Anyone else who has any understanding of navigation in general or in context of applications? बताओ यार. Okay, right. So as Priyansh and Ashmit said, that's exactly what is navigation. So from today, before these 2 classes, we were making a app with a single screen, but now we need to, or we want to navigate from one screen to another and from the another screen back to the first screen, right? So today we will understand the context of navigation in terms of mobile applications, right? So in first year, almost all of you guys are in first year. Do you guys know what is meant by a stack? कमलजीत, करण, निशा. ओके, नहीं पता. ठीक है. So anyone who said कि they know what is a stack, can you please explain me? Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. Karan, it was a good explanation. In context of that someone already knows what is a stack, then he can understand. Can you think of an explanation कि as a 5-year-old can you explain me कि मतलब what is a stack? Last and first out थोड़ा सा in English हिंदी में बताओ थोड़ा सा for other people to understand properly. हम्म. Okay.
Mhm. Hmm. Okay, right. Interesting, very interesting analogy. That is exactly what a stack is, as explained by Karan, right? So as you can see, there is an empty stack. If you push it, it goes at the bottom. Then you push another element, it goes above that, and the third element goes above that. And when you pop it, the element which entered at the last is going to be pulled out first. This is very simple to understand. There is nothing complex in that. If anyone has any issue about stack, can you please raise the hand or basically give a thumbs down? Okay, I guess everyone understands what a stack is. It is enough जितना मैंने भी बताया to understand बाकी की चीज़ें. We don't need anything else about the stack. ठीक है. So today we have to let's start by making a Flutter project, right? Let's go to our desired directory and create a new Flutter project. Everyone can do this, right? Everyone can start a new Flutter project and run the emulator. Let's remove all of this. Let's wrap this. Okay, never mind. Let's create a stateless widget named my app, and let's continue from where we were. Material app, then devices, Flutter. एक सेकेंड sorry, but everyone can at least do this key that they can create a new Flutter project. Then they can write some basic code like this, which we have been writing from the last 2 classes, and then they can run that Flutter project on their emulator, right? यहाँ तक तो there is no issues, I guess. Okay, cool. ठीक है. So let's continue. Let's remove this and add a column here, right? A column, and let's add children to it and some text maybe, and say this is screen 1, right? Then we can make a button also, elevated button, and child to it. Go to screen 2. Can everyone do this at least? Ki you can see this is a screen 1, go to screen 2, right? Let's also center this. Everyone understands what I did here? Main axis alignment dot center. Yeah. अगर किसी को कोई इशू है तो बताओ. अभी तक I just did the things which I have been doing from the last 2 classes. Nothing special. I just created a text, a column, inside a column and a button. This button does nothing right now.
but what we want is a behavior from where we will go from one screen to another screen. So as you can see, this was the code for screen 1, which is current. The screen 1 is a widget which is named my app, ठीक है. But the issue is कि अभी अगर हमें screen 2 पे जाना है तो we don't even have screen 2, right? Sir, can we give coordinates to place a button at any position on the screen? Yeah, there is, you can, relative to the current position. So basically you can wrap it with the positioned, and then you can provide an offset to it. I'm pretty sure there is a parameter isn't defined criteria. Okay, let's search offset positioned then Flutter. So you will get to know how to do offset, but it is just a syntactical problem. We can, okay, so position नहीं होगा, I guess offset नाम की widget है, like this. Then you can maybe provide an offset here like this. रुको, अरे यार, let's see about this widget, right? Offset class. Okay, direction, distance, dx dy. Okay, what it takes left, top, right and bottom directly. Okay, so अगर मैं position लिखूँ and this takes left etc. So you can relative to the position, इसको हटाओ यार, relative to the position you can the current position you can reset the or offset the current location, ठीक है. तो we will discuss it at the last, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. But the point is कि if you have any issues तो you can just google कि ये कैसे हो सकता है, and it is because there is a reference to everything on the Flutter's original website, you can figure it out, ठीक है. As you can see कि this takes parameters from left, top, right, bottom, width and height to change the position and the direction from the current position relative to its parent, ठीक है. We will figure it out last में, but let's see कि अभी हम क्या कर रहे थे. Elevated button and let's write child, ठीक है. So the point is कि this is the first screen. We need to make a second screen to which we have to move. So let's create a new folder maybe, or let's create a new file. Let's name it screen या फिर new screen .dat. So from this screen we will try to move to the new screen, and let's try to write the dummy code जो हम already लिखते हैं, Flutter and material. Let's import material. इतना we know कि we can write stateless widgets and new screen. अब this is a new screen, ठीक है. And let's try also make it something like a scaffold and कुछ text यहाँ पे, that this is a column, then this is screen 2 and this is an elevated button, ठीक है. इस पर हम on press लगा देते हैं. Cool. इतना we can do कि we can make this one screen जिस पे we have scaffold, center, column, then we have two children which is text1 and text2, and the second screen अभी हमने define करी है, but we don't have we haven't made a link between them, which we will eventually do. So this is the second screen जहाँ पे we have this column and the same text and the button. Let's try to, I guess किसी के पास I guess किसी को कोई issue नहीं है right now अभी तक, है ना. ठीक है, अभी तक हमने कुछ नया करा भी नहीं है, but let's try to write some logic here. I will explain the whole code जो हम अभी लिख रहे हैं.
but bear for me with a second. Context, okay. Let's see this code थोड़ा सा कि मैंने अभी क्या लिखा है, ठीक है. Let's move this down. Let's close this and let's see here कि यहाँ क्या लिखा है मैंने. तो as you can see that there is this Navigator.push, ठीक है. तो by the name of this Navigator you can understand this is a object or this is basically an object which helps us in navigation and managing the navigation, how the navigation is happening, ठीक है. Then we are doing push. तो why we are doing dot push? Because as you can see कि जो हमने डिस्कस करा था in the slides कि we are using a stack. तो internally this navigator maintains a stack. यहाँ पे let's open this. हाँ, तो this navigator maintains a stack and जैसे कि when we do navigator.push, ठीक है, it adds a new screen into the stack. तो initially the stack is not empty, there is already the first screen जो already plugged in है. कैसे plugged in है? जब हमने ये नया ऐप रन, मतलब पहली बार ऐप रन करा होगा from the start. Let's close this, hide screen. पहली बार हमने जब ये ऐप रन करा है तो it automatically pushed this first screen, the navigator pushed the first screen into the stack, ठीक है. And now we are manually doing it when we are trying to push the next screen, ठीक है. तो पहले एक ऑलरेडी देयर वाज एन एग्जिस्टिंग स्क्रीन जैसे 1, देन नेविगेटर डॉट पुश करके हमने एक नई स्क्रीन पुश कर दी ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट स्क्रीन. तो नेचुरली इट मेक्स सेंस कि अगर हमने उसके ऊपर पुश करी है दैट मीन्स द फर्स्ट स्क्रीन परसिस्ट्स बिहाइंड द सेकेंड वाली स्क्रीन, ठीक है. तो वी कैन ऑलवेज पॉप आउट द सेकेंड स्क्रीन एंड गो बैक टू द फर्स्ट स्क्रीन. तो लेट्स सी थोड़ा थोड़ा. नेविगेटर डॉट पुश, नेविगेटर वी अंडरस्टूड की इज अ ऑब्जेक्ट विच मैनेजेस द नेविगेशंस. देन पुशिंग ऑन टू द स्टैक ऑब्वियसली मीन्स कि we are pushing onto the stack, right? Then there is something which it expects two things. One is context, another is this route, ठीक है. तो इतना लिखते हैं अभी, context comma route. तो this function basically expects context comma route. यहाँ तक सब ओके है, ठीक है. What is context? Let's look into the slides. See, Navigator is a manager that controls screens on the Flutter app. It keep a stack of the screens. At top of the stack, what user currently sees. It supports push and pop. यहाँ तक हमें समझ में आ गया. इस स्क्रीन तक कॉन्टेक्स्ट वगैरह मैं बताता हूँ, है ना. What is Navigator we understood. Anyone, किसी को कोई इशू तो नहीं है ना अभी तक? Are you sure? Okay. Next. तो when we made material app and our home screen और जो भी हमने स्क्रीन बनाई है उसके बीच में it already made a context, already injected a navigator automatically. हमने नहीं कराई, Flutter automatically injected a navigator for the नीचे वाली widgets to work with it, ठीक है. We will figure it out आगे कि how it is being injected, but the main point is that we have to figure out what is context right now. तो context is an object that represents where a widget lives inside the widget tree. तो अगर जो मेरे पास जो widget tree है जो हमने अभी तक डिस्कस करा हुआ है कि what is a widget tree, तो it is तो अगर this is a widget tree and जो ये वाली widget है, let's say ये वाली widget है जो जिसको मैंने अभी मार्क करा यहाँ पे. तो दिस आपको तो दिख रहा है कि भाई ये ट्री में कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है. बट दिस विजेट इटसेल्फ, लेट्स से दिस इज़ अ बटन, तो दिस विजेट इटसेल्फ डजंट नो कि वो कहाँ पे है. तो कीप अ ट्रैक ऑफ दिस कि ये इटसेल्फ कहाँ पे है. वी नीड टू फाइंड इट बेस्ड ऑन सम कॉन्टेक्स्ट कि इट वो है कहाँ पे. तो बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट है जो हर एक विजेट का, इट डिटरमाइंस कि वो विजेट इज़ इन वो ट्री पे कहाँ पे है. बट ये हमें क्यों चाहिए, वाई वी नीड टू फाइंड कि जो ये विजेट है वो कहाँ पे है, या विजेट को खुद क्यों डिटरमाइन करना है कि वो कहाँ पे है. बिकॉज एज वी डिस्कस्ड यहाँ पे इन द स्लाइड्स
कि जो नेविगेटर है हमारा, उसका जो इंस्टांस है जिसको हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, Navigator.push लिख के, Navigator.push लिख के हम उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये कहाँ पे अवेलेबल है? जैसे कि मैंने बताया कि ये तो मटेरियल ऐप ने स्टार्टिंग में इंजेक्ट कर दिया था, उसके बाद नीचे बहुत सारी विजेट्स हैं, इसमें कॉलम है, फिर कंटेनर है, टेक्स्ट है, बहुत सारी विजेट्स हैं। अब जो ये नीचे की विजेट्स हैं, इनको इसका एक्सेस चाहिए, ठीक है? तो इसका एक्सेस कैसे मिलेगा मुझे? इसका एक्सेस मुझे मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ एज ए विजेट, तो मैं ऊपर जाके ढूंढूंगा कि भाई नेविगेटर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तभी मुझे उसका एक्सेस मैं ले पाऊँगा। अगर लेट से एक बिल्डिंग है और आपको चाहिए लेट से एन होटल है, लेट्स अज्यूम, एंड उसके टॉप फ्लोर पे देयर इज़ अ कस्टमर सर्विस रूम, ठीक है? तो इफ़ यू वांट टू अनाउंस समथिंग इन द होटल कि देयर इज़ दिस इशू, लेट्स अज्यूम, तो आपको पहले, अगर आपको करना है, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो आई एम एज्यूमिंग कि लेट्स से ऋषि इज़ अ विजिट राइट नाउ एंड इट इज़ इन फर्स्ट फ्लोर, एंड एट द टॉप फ्लोर वहाँ पे एक कस्टमर सर्विस वाला बंदा है। इफ़ यू वांट टू रीच टू इट एंड डू समथिंग विद दैट गाय, यू हैव टू फाइंड इट। पहले तो आपको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तभी आप जा पाओगे कि भाई टॉप फ्लोर पे अगर नेविगेटर बैठा है तो मुझे टॉप फ्लोर पे जाना है, तो मैं कौन से फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट यू नीड टू डिटरमाइन। उसके बाद यू विल गो टू द टॉप फ्लोर एंड आस्क द नेविगेटर कि भाई डू दिस सर्टेन टास्क, और द कस्टमर सर्विस गाय जो हमारे टॉप फ्लोर पे है टू डू द सर्टेन टास्क, ठीक है? तो सिमिलरली इन द ट्री जो लास्ट पे नोड एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास, जो लास्ट पे कहीं पे भी अपेरेंटली, तो दैट हैज़ टू फिगर आउट कि वो कहाँ पे है एंड नेविगेटर को कैसे ढूंढना है। फॉर दैट देयर एग्जिस्ट सम कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑल द विजिट्स, ठीक है? एंड जैसे ही मुझे अपनी खुद की लोकेशन पता लग गई, वेयर इज़ द, जैसे ही इस विजेट को अपनी खुद की लोकेशन पता है, देन इट कैन गो अप एंड सर्च कि वेयर द नेविगेटर एग्जिस्ट्स। तो लेट से मुझे यहाँ पे नेविगेटर मिल गया, देन आई कैन यूज़ इट इन माई कोड, ठीक है? तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? एज यू कैन सी कि जब वी आर मेकिंग दिस एप्लीकेशन, सॉरी दिस विजेट, सॉरी, एज यू कैन सी हम ये स्टेटलेस विजेट बना रहे थे ना, तो देर इज़ सम फंक्शन विच वी इग्नोर्ड लास्ट टाइम पे, विजेट बिल्ड, एंड यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखा है। तो लेट्स डिस्कस कि ये थोड़ा सा क्या है। तो दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन। अब ये कहाँ से आ रहा है ये वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड अभी, वी विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड, बट समथिंग लाइक दिस कि यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट लिखूँ तो इट वर्क्स, मतलब स्ट्रिंग और लेट्स से माय नेम, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो देयर इज़ डिफरेंट डेटा टाइप विच इज़ नेम्ड एज बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, and this obviously refers to the context which we are trying to assume, ठीक है? तो this is the context जो इंड्यूस हो रहा है, इस विजेट के अंदर आ रहा है, इस फंक्शन के अंदर प्लग इन कर रहा है, ठीक है? मतलब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, या मतलब मान लो मेरा कोई और फंक्शन है, लेट्स से हेलो फंक्शन है, जिसमें मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और नेम लेता हूँ, ठीक है? अब मैं ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं कॉल तो कर सकता हूँ ना, ऐसे हेलो फिर इसमें स्ट्रिंग डाल के कुछ हाय, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। अब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कब कॉल हो रहा है वो हमें लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज़ डन बाय फ्लटर इटसेल्फ। वो फ्लटर ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट कौन ऐड कर रहा है? ये फ्लटर ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है, ताकि वी कैन मेंटेन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल द विजेट्स जो नीचे हैं, ताकि वी कैन यूज़ दिस Navigator.push का मेक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? बेसिकली अगर किसी को ये नहीं समझ में आए तो हमें तो सिर्फ इतना सा लिखना है, ये वाला सिंटेक्स, ठीक है? ये वाला Navigator.push कॉन्टेक्स्ट। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो देयर इज़ नो इशू, बट वी कैन ऑलवेज एक्सप्लेन इट अगेन। कि पहली बात तो ये बताओ कि अगर किसी को सबको समझ में आ गया या नहीं, कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थोड़ा बहुत यू गेट अ हिंट ऑफ इट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड बताओ। नो, ओके सुजल, नो। Why can't this keyword be used in place of context to push in stack? What do you mean by that? कौन से ऑब्जेक्ट को? मतलब ओके ओके, तो यू आर ट्राइंग टू से कि दिस कीवर्ड है जो यहाँ पे, तो एक मिनट, जो यहाँ पे बटन है ये वाला,
दिस इज़ अ क्लास इन इटसेल्फ। तो लेट्स से एलिवेटेड बटन नाम की क्लास है, एंड जो इसका दिस कीवर्ड है, हाँ, उसको हम यूज़ करें तो आगे बताना एक बार। करंट स्क्रीन है, ओके, हाँ, जैसे ये रही, ठीक है। अरे तो बिकॉज नेविगेटर को हमें बताना है ना कि हमारा कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे है, तो वो कैसे बताओगे तुम दिस पॉइंटर से? इसका एक्सेस, इस एलिवेटेड बटन के पास दिस का एक्सेस थोड़ी है। दिस का एक्सेस तो ख़त्म हो गया ना यहाँ पे हमारे पास, आफ्टर टेकिंग जो भी वेरिएबल्स हमें लेने थे या कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद। यहाँ पे दैट इज़, जो तुम बोल रहे हो, इट इज़ वेरी क्लोज टू द इंटरनल्स ऑफ हाउ इट इज़ बीइंग वर्कड, कि दिस पॉइंटर ही इवेंचुअली इट इज़ पासिंग टू द नेविगेटर, बट देर इज़ एन API विच फ्लटर एक्सपोजेस फॉर अस टू वर्क विद। तो हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, ना कि हम ऑब्वियसली दिस कीवर्ड यूज़ कर लें। तो नेविगेटर इज़ द स्टैक or the name of the stack. So navigator is a class which manages the stack and the other operations associated with the stack. ठीक है, एंड सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट। किसी को कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया ना अभी तक? बता, एक बार दोबारा बताना, किसको समझ नहीं आया या क्या समझ नहीं आया, बताओ। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर एवरीवन। तो हमें वी नीड टू फर्स्ट यूज़ दिस नेविगेटर, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ये नेविगेटर कहाँ प्लग्ड इन है ये हमें पता करना है। तो पहले तो ये एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बना लेते हैं कि जो ये नेविगेटर है, फर्स्ट इज़ कि देयर कैन बी मल्टीपल नेविगेटर्स, ठीक है। तो एक नेविगेटर अगर ये है, कोई और नेविगेटर भी हो सकता है, कोई और नेविगेटर भी हो सकता है। देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ अ नेविगेटर इन आवर ट्री, ठीक है। तो जो मटेरियल ऐप जब हम बनाते हैं, तब बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ अ नेविगेटर जो प्लग इन हो जाता है जस्ट बिलो इट, जो हम नहीं देख पा रहे हैं हमारे कोड के अंदर, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। फ्लटर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट्स अ नेविगेटर हेयर, ठीक है, गुड। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को कि व्हाट इज़ अ नेविगेटर? हमें पहले तो ये पता लग गया कि नेविगेटर क्या है। नेविगेटर इज़ अ क्लास विच मैनेजेस द ऑपरेशंस फॉर नेविगेटिंग और पुशिंग और पॉपिंग और मेंटेनिंग अ स्टैक, ठीक है। सेकंड, वी अंडरस्टूड कि ऑटोमेटिकली नेविगेटर इज मेड, मल्टीपल नेविगेटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ नेविगेटर, एंड नेविगेटर कैन बी प्लेस्ड, विल बी प्लेस्ड डायरेक्टली बाय मटेरियल ऐप बिलो इट, ठीक है। ये हो गया, कहाँ गए हम? तो ये हमें पता लग गया। अब डाउन द बॉटम में जाते हुए, डाउन द लाइन, दिस विजेट वॉन्ट्स टू यूज़ दैट नेविगेटर और इन्वोक दैट नेविगेटर, ठीक है। तो हमें वो नेविगेटर इन्वोक करना है, ठीक है। तो कौन सा नेविगेटर इन्वोक करना है ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मल्टीपल नेविगेटर्स हो सकते हैं। तो नीचे का नेविगेटर इन्वोक करना है, ऊपर में अगर 3 नेविगेटर हैं, कौन सा इन्वोक करना है, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम, अभी मल्टीपल नेविगेटर्स कैसे आ रहे हैं वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, वी विल इवेंचुअली सी कि कैसे आ रहे हैं, बट वी कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि अगर ये यहाँ पे एक नेविगेटर एग्जिस्ट करता है, ये वाला, तो देयर कैन बी मल्टीपल नेविगेटर्स। तो ये भी नेविगेटर हो सकता है कहीं पे इन सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो एक नेविगेटर ये है, एक नेविगेटर ये है। तो इस बटन को हाउ विल दिस बटन नो कि मुझे कौन से नेविगेटर को एक्सेस करना है? वी डोंट नो दिस, ठीक है। तो वी व्हाट फ्लटर डज इज कि बाय डिफ़ॉल्ट इट क्लाइम्स अप द ट्री एंड हर एक नोड को इट सर्चेस कि इज दिस अ नेविगेटर, इज दिस अ नेविगेटर, एंड एज इट इनकाउंटर्स द फर्स्ट नेविगेटर इट यूजेस दैट, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब अगर हमें इस नेविगेटर को यूज़ करना है, ये वाले को, ठीक है, जो मतलब जस्ट अबव, मतलब जो भी मुझे पहला नेविगेटर मिलेगा ऑन दिस ट्री, तो ये नेविगेटर है, नहीं है क्या? ये नेविगेटर है, हाँ ये नेविगेटर है, इसको मुझे यूज़ करना है। तो फॉर दैट टू बी डन, मुझे पहले मेरे बटन का पोजीशन खुद पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ इन द हायरार्की ऑफ द ट्रीज। तो जब मुझे ये पता होगा, तभी आई कैन गो अबव एंड फाइंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेविगेटर।
ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वी विल राइट कि यहाँ पे मटीरियल पेज राउट। ओके, दिस इज़ अनदर थिंग जो दिस एक्सेप्ट्स। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ राउट। राउट क्या होता है कि हमें कहाँ जाना है नेक्स्ट, राइट? तो नेक्स्ट स्क्रीन का डेस्टिनेशन हमें बतानी है फ़िलहाल के लिए। तो नेक्स्ट स्क्रीन की डेस्टिनेशन क्या है? इसका नाम क्या है? न्यू स्क्रीन। तो मैं यहाँ लिख दूँ न्यू स्क्रीन डायरेक्टली, बट ऐसा दिस इज़ नॉट द सिंटेक्स। पहले हम वी विल अंडरस्टैंड सिंटेक्स एंड व्हाई दिस एग्जिस्ट्स, वो हम फिर बाद में समझते हैं। तो यू हैव टू राइट मटीरियल पेज राउट देन बिल्डर समथिंग लाइक दिस। तो हमें पहले बस ये लाइन समझनी है जो हमने नई लाइन लिखी है, ठीक है, ये वाली लाइन मटीरियल पेज राउट वाली। तो व्हाट इज़ दिस मटीरियल पेज राउट? व्हाट दिस डस, ठीक है, दिस मैनेजेस कि जो नई स्क्रीन आ रही है वो कैसे बिहेव करने वाली है, एंड वो जो नई स्क्रीन आ रही है वो कैसे बिहेव करने वाली है, वन, एंड द एनिमेशंस विच गोज़ विद द नेक्स्ट स्क्रीन। तो इफ़ यू हैव माइट हैव सीन कि फ्लटर ऐप नेविगेशन एनिमेशन, let's see कोई random video where we can examine the navigation after clicking a button. ऐसा करते हैं, छोड़ो इसको, लेट्स सी, हम अपनी ही नेविगेशन देखते हैं फर्स्ट। हमें ये हमने कोड तो लिख लिया, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन अ सेकेंड। वेट अ सेकेंड, ठीक है, एंड लेट मी डू सम चेंजेस। अभी डोंट सी देम, वी विल डिस्कस देम इन अ सेकेंड, ठीक है। There is by default no animation, but okay. See, अगर subtly you will see, तो जो नया पेज आ रहा है it pops from center and expands थोड़ा सा subtly, ठीक है। या फिर अगर आपने बहुत सारी ऐप्स में देखा होगा कि द नेक्स्ट पेज कम्स ऐसे थोड़ा स्लाइड होके। सो देर आर सर्टेन एनिमेशंस टू ओपन अ न्यू पेज, ठीक है, बट दिस इज़ मैनेज्ड बाय मटीरियल पेज राउट। अब जो हमने एक बहुत सटल सी एनिमेशन देखी जो स्टार्ट में ही थी, जो हमने मतलब ऑटोमेटिकली बनी है, जो एनिमेशन तो मैंने नहीं बनाई, तो ऑटोमेटिकली बनी है। तो देर इज़ अ बेसिक एनिमेशन विच कम्स विद फ्लटर एंड इट मैनेजेस दैट एनिमेशन। बाकी इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन स्लाइडिंग एनिमेशंस, वी विल अंडरस्टैंड दैट इन अ लेक्चर, एक पूरी क्लास विच इज़ अबाउट एनिमेशंस, ठीक है। तो गो टू screen 2. You can see subtle pop happens from the center to the whole screen, that is managed by this class. Then builder context new screen, ठीक है। अब एक चीज़ है कि why it is asking कि it is a parameter named builder, ठीक है। अब मुझे एक फंक्शन देना है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ दिस, कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मतलब इन द सेंस जनरली दिस इज़ एन anonymous function. Anyone knows about anonymous functions? लैम्डा फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शंस, फर्स्ट ईयर में किसी ने सी में या पाइथन में पढ़ा होगा। यस, एनीवन हु डज नॉट नोज what are anonymous functions? Okay, the people who don't know what are anonymous functions, you can call them directly, leave them. Basically this is a function only, this is a definition of a function. Let's also remove this. One second. Can you see this is kind of a function definition only, ये वाली लाइन, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे कोई फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ कॉल बैक, जो हमने मतलब दिस इज़ अ फंक्शन हमने जो वी गिव इट टू द बिल्डर, ये वाला, एंड वी टोल्ड कि जब तुझे चलाना हुआ चला लेना, ठीक है। वाई वी डिड दैट? बिकॉज कि जब कुछ ऑपरेशंस चलेंगे, कैसे ऑपरेशन चलेंगे, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले ये जाएगा ऊपर नेविगेटर को ढूंढेगा, फिर नेविगेटर फिर उसमें अपने स्टैक में डालेगा, उसके बाद एनिमेशन चलेगी। तो देयर इज़ सर्टेन थिंग्स जो ऑपरेट होंगी
बिफोर गोइंग इन टू द नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है. तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन और गिविंग इट अ फंक्शन कि जब तेरा मन हो चला लेना, व्हेन यू आर रेडी देन रन इट, ठीक है. व्हेन यू आर रेडी टू बिल्ड देन बिल्ड इट, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड बिल्डर, ठीक है. इतना समझ में आ गया हमें कि दिस इज़ अ फंक्शन विच वी आर गिविंग टू द मटीरियल पेज राउट. मटीरियल पेज राउट रन्स द एनिमेशंस एंड मैनेजेस देम. वी आर गिविंग दिस एन फंक्शन कि जब तेरा काम हो जाएगा, व्हेन एवरीथिंग इज डन देन रन दिस फंक्शन एंड रिटर्न द न्यू स्क्रीन जो यहाँ पे बनी हुई है. एवरीवन गॉट दिस इतना सा? व्हाट इज़ हैपनिंग? एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टूड अभी तक जो मैंने बताया, या कुछ भी हिंट समझ नहीं आया किसी को कि क्या हो रहा है इवेंचुअली? बताओ. ओ, बिल्डर वाली चीज़. हाँ, तो डू वी हैव एस्टैब्लिश दैट दिस इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है. हाँ, तो वी हैव एस्टैब्लिश इतना. अब व्हाट इज़ हैपनिंग कि वी आर गिविंग दिस फंक्शन टू दिस मटेरियल पेज राउट एज अ कॉल बैक. व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बैक? कि कॉलिंग बैक जब तुम मतलब यू कैन कॉल व्हेन यू वांट टू, जब तुम्हारा मन हो यू कैन कॉल दिस. आई एम जस्ट हैंडिंग दिस फंक्शन टू यू, ठीक है. अब because there are certain operations which are going to run before opening the new screen. What are those operations? That internally बता रहा हूँ कि this goes up the tree, it traverses it, then finds the context, then based on that context the navigator pushes the new screen to the stack, then उसके बाद it internal जो भी manage करता है, फिर उसके बाद there is an animation which will run before opening the new screen, and these are certain things जो होंगी. एंड उसके बाद वी विल सी द न्यू स्क्रीन एट द लास्ट. दिस इज़ द लास्ट थिंग विच वी विल डू, ठीक है. तो वी आर जस्ट गिविंग इट अ फंक्शन कि इसको रन दिस फंक्शन वेन एवर यू फील लाइक इट आफ्टर डूइंग योर ऑपरेशंस, ठीक है. तो उसने अपना सारा कुछ करा, अपनी एनिमेशन चलाई, उसके बाद वी गेव इट अ फंक्शन एंड उसके बाद इट विल कॉल दैट फंक्शन कि नाउ आई विल प्ले दिस फंक्शन. व्हाट दिस फंक्शन डज इज जस्ट रिटर्न्स द न्यू स्क्रीन जो यहाँ पे है, जो हमने नई स्क्रीन बनाई है, ठीक है. ओके, तो अभी हैव एस्टैब्लिश इतना. लेट्स सी द स्लाइड्स वगैरह थोड़ी सी. लेट्स रीड थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है. बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स वेयर अ विजेट लिव्स इनसाइड द विजेट ट्री. इतना हमने एस्टैब्लिश कर लिया है. नाउ व्हाट इज व्हाट नॉट व्हाट द विजेट इज, नॉट हाउ इट लुक्स, ओनली वेयर इट इज़ पोजिशनड रिलेटिव टू द अदर विजेट्स. तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया अभी कि इट जस्ट रिप्रेजेंट्स कि where that widget lives, where is the position of the widget in the widget tree, and by passing context. तो एज यू कैन सी कि हम जो नई स्क्रीन है या मटेरियल राउट है इसको भी कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं यहाँ पे. दिस इज़ अ फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जिसमें हम न्यू स्क्रीन रिटर्न करवा रहे हैं, बट हम इसमें कॉन्टेक्स्ट भी पास कर रहे हैं. वाई? Because by passing context you are saying start searching from my location, go up to the tree, find the nearest navigator and give him this command, ठीक है. We got it. This is illustration, not a very good one. हाँ, तो we understood इतना कि and as you can see कि from my app I can go press this button and this will invoke this simple code which we understood. And anyone who is thinking this is very complex कि क्या हो रहा है context ऊपर नीचे या what is context, right now we don't need to understand actually सारा कुछ कि what is context वगैरह, but it is always good to know. But the point is कि this code snippet, if you want to treat it as a black box कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, just treat it as a black box and यहाँ पे बस add your new screen where you want to go, ठीक है. एंड दिस इज़ द कोड स्निपेट जिससे हम वी कैन गो टू द न्यू स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन, ठीक है. ओके, एंड इफ आई विल क्लिक हेयर गो टू स्क्रीन 2, एज यू कैन सी वी आर इन स्क्रीन 2. फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स चेंज द कलर ऑफ द दिस स्क्रीन जो नई स्क्रीन है हमारी. लेट्स डू इट एम्बर एंड लेट्स डू द फर्स्ट स्क्रीन एज मे बी, ठीक है.
let's reload this. So as you can see, we are going from first screen to second screen. This is okay, everyone? Cool. ठीक है, तो वी अंडरस्टूड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, इतना हमने इस्टेब्लिश कर लिया है. वन थिंग इज़ कि एज यू कैन सी यहाँ पे पुश है, तो इफ़ आई डू पुश रिप्लेसमेंट, तो एज यू कैन एग्जामिन कि क्या होने वाला है. तो जैसे ये वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, देन वन के अंदर उसके ऊपर हम टू डाल रहे थे. बट वट वी विल डू नाउ इज़, जब वी विल डू पुश रिप्लेसमेंट, वी विल रिमूव वन टोटली एंड जस्ट प्लेस टू ओवर इट. ठीक है, बाकी सारा कुछ बिलो दैट वी विल फ्लैश इट आउट एंड पुट टू. तो मतलब हमने वन को टू से रिप्लेस कर दिया बेसिकली. दैट्स व्हाट इट वांट्स टू से. तो व्हेन इट विल कम इन हैंडी वो मैं भी बताता हूँ. बिकॉज व्हेन यू गो टू द न्यू स्क्रीन, लेट्स ट्राई टू मेक अनदर बटन. दिस इज़ वन एलिवेटेड बटन. लेट्स मेक अनदर बटन. ओके, सो देर इज़ ऑलरेडी अ बटन, सॉरी माई बैड. दैट गो टू स्क्रीन वन. हमने एक ऑलरेडी बटन बना रखा है स्क्रीन वन पे. To do this, to go back basically from screen 1 2 to 1, we just have to do Navigator.pop. That's it. And pop context. That's it. Now you can go back from the second screen to first screen. Basically it pops this 2 back. जैसे यहाँ पे 3 पीछे जा रहा है, तो you will obviously see 2 on the top, तो which is the screen जो हमने पहले पुश करी हुई थी. So if I go to screen 2, then it pushed the second screen at the top in the stack. Now I will go back to the screen 1, so it will pop the second one from the stack. ठीक है, that is as simple as it is. ठीक है, let's do push replacement, sorry. तो एक बार let's see it again. ठीक है, तो go to screen 2, go to screen 1. ठीक है, अब when we did push replacement as you saw, तो बिकॉज इन द स्टैक बिकॉज वी आर पुशिंग डूइंग पुश रिप्लेसमेंट, ऐसे मैंने बताया कि जो नीचे वाली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्क्रीन है, इट विल रिमूव दैट एंड देन पुश द सेकेंड स्क्रीन. तो अगर पुश रिप्लेसमेंट हो रही है, तो जैसे ये 2 स्क्रीन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तीसरी स्क्रीन में डालूंगा तो ऐसे नहीं डलेगी, ये दोनों हट जाएंगी 2 और 1, एंड फिर थर्ड डलेगी. तो इट वुड बी अ फ्रेश स्टैक. ठीक है, अब क्योंकि मैंने पुश रिप्लेसमेंट कर रखा है, तो अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ गो टू स्क्रीन 2, तो अब स्टैक में सिर्फ स्क्रीन 2 ही है, 1 है ही नहीं. तो जब मैं अब गो बैक टू स्क्रीन 1 करूँगा, तो मैं स्टैक में से पॉप तो अभी भी कर रहा हूँ. तो अब नाउ देर इज़ अ एम्प्टी स्क्रीन, बिकॉज अभी कोई स्क्रीन ही एग्जिस्ट नहीं करती स्टैक में. नाउ माई स्टैक इज़ एम्प्टी, तो देर इज़ नथिंग टू शो. एवरीवन अंडरस्टूड जो मैंने अभी थोड़ा स्टैक के बारे में बताया, और व्हाट इज़ पुश रिप्लेसमेंट एंड नॉर्मल पुश एंड हाउ इट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट. जी सर बताइए. ओके, गुड. ठीक है, तो वन मोर थिंग इज़ पासिंग कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन. तो अगर एक स्क्रीन की कोई स्टेट है, तो जैसे ये एक स्क्रीन है, इसमें कोई स्टेट है, लेट्स से कोई इंट काउंटर 0. ठीक है, दिस इज़ stateless widget. So let's try to make it a stateful widget. You can see there is a bulb which helps you with a lot of actions. I guess a lot of people have explored it, but let me tell you थोड़े और operations. तो ऐसे मैं column पे hover करूँगा, it gives you certain options to help you, that if you want to, let's say, wrap it with another widget, let's say a container, so you can do it without cutting it and then writing a container and pasting it again. So what I did was that I just hovered over the stateless and converted it to stateful. So it automatically converts and writes the code for me. Now I can make a variable, let's say counter equal to 0. ठीक है, अब इस स्क्रीन में there is certain state. Let's do this. तो हमने जैसे कल एक काउंटर वेरिएबल काउंटर ऐप बनाया, let's replicate that here only. Let's, ठीक है, तो let's make another button. And everyone remembers ki how we made a counter application, I assume.
माय बैड, ऐड काउंटर, ठीक है। इसमें कुछ इशू जो मैंने अभी एलिवेटर बटन बनाया है एंड ऑन प्रेस में सेट स्टेट लिखा है, देन वी हैव अ काउंटर बटन टू इंक्रीज द काउंटर। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, ठीक है। अब देयर इज सम स्टेट स्टोर्ड इन दिस स्क्रीन. व्हाट इज दैट स्टेट? दैट currently the counter की value is 11. अब when I go to screen 2 and go back to screen 1, और पहले तो इसको push replacement let me remove, let's make it push only, ठीक है। let's refresh, हाँ, तो let's go to screen 2 and go back to screen 1, and as you can see कि जो state थी, what was the state before going to the second screen? It was that the variable counter in this screen had value 5. So when I came back, it still had value 5, which tells us that it basically जो state है वो persist हो रही है across the screens. तो अगर मैं वापस आता हूँ तो I see the same screen and it maintains the same state from the navigator, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया, वी कैन ऐड द काउंटर, इंक्रीज इट्स वैल्यू। अब इफ़ आई गो टू स्क्रीन 2, व्हाट इफ़ द स्क्रीन 2 इज़ डिपेंडेंट ऑन स्क्रीन 1? तो आई माइट हैव टू पास सम कॉन्टेक्स्ट टू द स्क्रीन 2 की ये लो भाई, यू माइट रिक्वायर दिस, या स्क्रीन 2 माइट आस्क द स्क्रीन 1 की आई वॉन्ट दिस फ्रॉम द फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। तो वट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस? कैन एनी वन थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल की when you are on the first screen, and if you go to the second screen, the second screen also requires some data from the first screen. So in this case, let's say username cart, exactly, ठीक है, shopping cart makes sense. Anyone else? Edit button in gallery, okay. You guys are right. So what we have to do is that जो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू है, मे बी आई वॉन्ट टू एड इट टू द नेक्स्ट स्क्रीन, शो इट टू द नेक्स्ट पर्सन द नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस की लेट्स मेक, नहीं काउंटर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव दिस न्यू स्क्रीन, बट दिस इज़ अ स्टेटलेस स्क्रीन, स्टेटलेस विजेट, ठीक है। अब वी नीड टू मेक अ वेरिएबल यहाँ पे विच इट विल एक्सेप्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्क्रीन। तो लेट्स मेक अ वेरिएबल इंट एंड काउंटर न्यू स्क्रीन, लेट्स से absurd name for a variable but fine. And as you can see कि यहाँ पे बहुत सारे issues हैं, 2-3 lines हैं, let's read it one by one. That this class is marked as immutable, but one or more of its instance fields aren't final. Okay, can someone, मतलब अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, but can you read this and tell me कि what is happening here? बस जस्ट मैंने एक लाइन ऐड करी थी, इसको छोड़ो, बस इसका देखते हैं पहले। लेट्स कंसिडर दिस न्यू स्क्रीन वाला इशू जो मैंने अभी पढ़ा। रीड इट वंस अगेन एंड थिंक ऑफ इट एंड टेल मी कि व्हाट इज़ द इशू। इम्यूटेबल है स्क्रीन बट वेरिएबल्स कैन चेंज इन इट, ओके। एनीवन एल्स? We should use final keyword, okay. So the point is that we explicitly mark कि ये screen stateless है, तो इसमें कोई variable change नहीं होना चाहिए, but this variable जो basically यहाँ पे हमने variable बनाया it is changeable, तो we should mark it final, that as the name suggests we are marking this कि ये final ही है, जो एक बार value आ जाएगी I won't change it, ठीक है। at less widget में state creation, what do you mean by that, Priyansh? At less, okay, no mind. Stateless, okay, widget में state creation, yeah, right. So so that's why we have to mark this as final and tell that we are not going to change it. But क्या तुम लोगों ने C या Python में const पढ़ा है कहीं पे? constant variables, yep. तो नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल्स नहीं पड़ेगा हरलीन? दिशा, ओके। तो कैन सुजल यू एक्सप्लेन via the mic what are constant variables, or anyone else who knows what are constant variables, can you please explain me, aside from Dart or
in any language, agnostic to any language. Hash define pi 3.14, that is different. Hash define is very different from constant variables, but fine. So as the name suggests, constant variables cannot change. A variable whose value cannot be changed once declared. Constant variables cannot be changed in a program. Exactly. Yeah. So Harleen, that is what it is. कि अगर एक बार हमने we defined a variable, we can't change it. But that is exactly what I said for final also. यहाँ पे कि once we defined, we can't change it. तो can someone think of कि what is the difference between final and const then, or is there any difference between them? We have established that constant variables are those variables which when declared cannot be changed, and that is the same exact thing which I said for this, that once I declare the counter new string variable, we are not going to change it. So what is the difference? Can anyone think of it? Give me a thumbs up if you can't think of it. Final is a runtime constant, while constant is a compile time constant. Exactly. So constant basically compiled do you guys know the difference between compile time and runtime? People who have studied C, a lot of people know. Can someone, maybe Karan, can you turn on the mic and explain me the difference between runtime and compile time? Yeah. Okay. 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 Right. So to make it into way layman language, while it might not be correct, but to make it into a layman language, let's translate it. Ki when I am compiling the application into APK file, let's say, तो अगर मैं do something like this कि const pi equal to 3.14, तो this is a value which I know before running the application कि pi की value 3.14 होगी because मैंने बताई है वो, ठीक है. So that is why जो pi की value जो हमने define करी है, let's say 8, pi की value 8 define करी है, तो it can be hard coded into the code itself while compiling into the app, कि हमें ऑलरेडी पता है बिफोर रनिंग द ऐप कि इसकी वैल्यू 8 ही होने वाली है हमेशा, और हम इसे चेंज भी नहीं कर सकते बाद में जब एक बार ऐप बन गया. तो दैट इज़ व्हाट कॉन्स्ट इज, विच इज़ अ कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट. फाइनल इज़ अ रन टाइम कॉन्स्टेंट, विच मीन्स कि हमें इनिशियली वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस कि क्या होने वाली है इसकी वैल्यू, फाइनल की वैल्यू क्या होने वाली है. इसको मैं हटा देता हूँ. सो वी डोंट नो कि फाइनल की वैल्यू क्या, मतलब सॉरी इसकी इंटीजर की वैल्यू क्या होने वाली है. But we will eventually know it when the app runs and we go to the second screen. We will eventually know it इसकी वैल्यू क्या होने वाली है. But final enforces कि then I can't change its value. ठीक है, everyone got it? Final and const में difference. Priyansh, Kavish, Amrit, Harleen. Okay, cool. I guess everyone got it. So one error we solved by writing final. Then there is another error यहाँ पे. All variables must be initialized. So this is a constructor basically, which we have to write. For people who don't know object-oriented programming, don't worry about it. But it basically means that जब ये class बनेगी, तो we need to determine और कि मतलब value क्या होगी eventually. तो either you do this, or you can just remove this and make it default 0. So it will be by default 0. So don't worry about this right now. For people who know, you obviously know कि क्या होता है, unless we don't know, we don't need to know anything about it right now. ठीक है, cool. So this is a stateless widget. We got it. We made a variable. We did whatever we did here. This is a black box right now, but we made a variable. ठीक है, अब now we can use this variable यहाँ पे. And what is this variable? This will be passed from the first screen to the second screen. ठीक है, let's try to use it. ठीक है, so this is main.dart and as you can see, जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइनल डाला, it is trying कि मुझे काउंटर न्यू स्क्रीन चाहिए ही चाहिए. So that is why it is saying कि the named parameter is not given. तो जब we are calling this, we need to provide कि हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास करनी है. तो let's say I always pass 10, मेरी मर्ज़ी, ठीक है, I will always pass 10.
एंड इवेंचुअली वी कैन मेक इट डायनामिक. तो एज यू कैन सी यहाँ पे काउंटर की कुछ वैल्यू है. जब आई पास दिस वेरिएबल, जो भी एक मतलब वेरिएबल तो मैंने पास करा ही नहीं, मैंने तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पास करी है टू नेक्स्ट स्क्रीन. तो इफ आई गो टू द स्क्रीन 2 यू कैन सी इट इज़ ऑलवेज 10. I will go back, the state persists, then I go to screen 2, this is always 10. Now what I can do कि जो इस स्क्रीन में वेरिएबल है विच इज़ काउंटर, आई कैन पास इट टू अनदर स्क्रीन ऑल्सो. तो यू कैन, जैसे किसी ने बताया कि मुझे यूज़र नेम आगे रिले करना है या मुझे कार्ट की डिटेल्स आगे रिले करनी है, तो यू कैन सर्टेनली रिले दैट फ्रॉम यहाँ पे. अब कि एज यू कैन सी अब काउंटर की वैल्यू 7 है. व्हेन आई गो टू स्क्रीन 2 आई कैन ऑल्सो एक्सेस वो काउंटर की वैल्यू जो मुझे पास हुई है. सो टू थिंग्स यहाँ पे कि जो प्रिमिटिव सो प्रिमिटिव एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स पढ़ी हैं किसी ने, मतलब एनी वन हैज़ आइडिया व्हाट आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? ये तो पढ़ी होती है हम फर्स्ट सेमेस्टर में आई गेस सब ने. एनी वन? ओके, जिसने नहीं पढ़ी गिव मी अ थम्स अप. व्हाट डू यू मीन बाय मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इफ यू कांट आंसर दैट? एनीवन? प्रिमिटिव आर int char एंड कॉम्प्लेक्स आर लाइक यूज़र डिफाइंड. ओके, तो बेसिकली यू आर राइट कि जो सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज द नेम सजेस्ट प्रिमिटिव int कैरेक्टर एक्सेट्रा, तो दीज आर द डेटा टाइप्स जो कॉपी हो जाती हैं फ्रॉम, मतलब व्हेन आई गो टू स्क्रीन 2 जो मैंने ये काउंटर वेरिएबल पास करा, दिस इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज़ इंटीजर. तो जब मैं नई स्क्रीन पर जा रहा हूँ तो यहाँ पे इट इज़ मेकिंग अ न्यू कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल इन द मेमोरी. But when there are user defined data types which are complex in nature, like making objects of the classes जो हमने कल क्लास में डिस्कस करा था, या स्ट्रक्चर्स अगर किसी ने सी में पढ़े हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रेफरेंस्ड कॉमनली बाय द बोथ द स्क्रीन्स. ठीक है, तो अगर उसकी देयर इज़ अ शेयर्ड मेमोरी फर्स्ट स्क्रीन में जो बनी थी और हमने सेकेंड स्क्रीन में पास करी है, तो दैट इज़ नॉट मेड अ कॉपी, दैट इज़ शेयर्ड. ये भी आई गेस बहुत लोगों ने पढ़ा होगा व्हेन इन सी व्हेन यू पास पॉइंटर्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो इफ़ यू डिडंट गेट इट देयर इज़ नो वरीज कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, which is not that complex also, but yeah, that is what we the point was basically कि हम we were able to persist the state of the first screen, pass the variable from the first screen to the second screen. ठीक है, तो अगर यहाँ पे make it 8 तो you can see next screen पे भी 8 है. तो now you can make do two things कि you can communicate between two screens and you can obviously link two screens. You can go from one screen to the screen and back and pass data between them. That is what we have established right now. इतना हमने कर लिया. इसमें किसी को भी कोई issue है कि क्या हो रहा है, you can tell me, then we can continue. Next topic is I guess थोड़ा simple ही, which is lists. ओके, एनीवन जिसको कोई इशू है वो दे दो यार थम्स अप एक बार कि प्लीज़, नहीं तो आई कैन कंटिन्यू फिर. ओके, आई गेस वी कैन कंटिन्यू. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिस्ट. सो आई गेस ऑलमोस्ट एवरी वन नोज़ वट इज़ अ लिस्ट. और अगर या पाइथन में तो शायद लिस्ट ही होता है, सी में एरेज काइंड ऑफ, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट यू कैन you show the code for the new screen once? Yeah, तो I guess we should add the code directly here. यहाँ पे कर देता हूँ मैं add for the reference. Let's wait a second. Anything else? Anyone?
I guess we can continue with lists. So tell me ki you guys have heard about lists, right? You can make a simple list. So we can go to Dartpad thoda sa and look at some lists. ठीक है? So this is one list. जिसका screenshot यहाँ डाला हुआ मैंने. तो let's try to make it. तो to make a list you have to write list, then name of the list, and then you can make a simple list. ठीक है? Simple enough. Also you can enforce कि इसमें कौन सी data types आएंगी to maintain strictness. So let's do int for this case. So now if you try to add string, then you can't obviously, and if you remove this enforcement, then you can write add strings also. ठीक है? That is it. This is basic lists, how to make them. ठीक है? Let's continue. ये हर जगह कॉपी हो गया, I guess यार, sorry. Let's remove them. List view. So as we have been seeing कि we can make columns, but we can't make lists right now. In the sense you can also make a list using column, right? कि मैं अगर if I want a list of items, then let's remove this. यहीं से करते हैं, रुको. Let's remove all of this. I guess I remove this, yeah. So you can just make a list of text यहाँ पे, then reload, and we can see कि where it is. There is a अरे यार, let's restart for once. Yeah, so there is a list of items here. ठीक है? Let's try to change the column with a list view. Fine. Let's reload this. It is still a list view, but as you can see I can now scroll this list also. So before this the columns were not scrollable. If you want certain proof key, let's try to add a large amount of these so that it overflows my screen. So as you can see कि once in the column, once the screen का size exceeds, उसके बाद you can't add anymore. You can see bottom overflowed by 140 pixels. ठीक है? But if we convert it to a list view, oh my bad, list view, you can see now it is scrollable. ठीक है? We have established इतना तो कि what is list view. We also established कि list क्या है, बस it also accepts children, just similarly like column, and now we can add a lot of items. अब one thing is that this is a normal list view. अगर हमें छोटी मोटी list बनानी है, जैसे जो भी हो सकती है, let's say there is a settings page जिसमें 10-12 settings हैं, तो we can manually add वो settings and there is no problem. But one thing to consider कि this is not lazy in the sense कि जो list हमने बनाई है, what I meant to say was कि अगर मैं इसमें 500 एलिमेंट्स डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लेट्स से 100 एलिमेंट्स डाल दिए, तो ऑल जो ये 100 एलिमेंट्स की मेमोरी है, मतलब व्हाट दिस टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट इज़ अ क्लास जिसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे. तो मैंने अगर इसे 100 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं टेक्स्ट के, या बेसिकली विजेट्स बनाई हैं विच आर इवेंचुअली ऑब्जेक्ट्स, तो जो ये विजेट बनाई है मैंने 100, जैसे ही ये स्क्रीन लोड होगी 100 की मेमोरी विल बी क्रिएटेड इन द सिस्टम. तो इट विल बी पैरेलली क्रिएटेड. दैट्स वाई अगर मैं 1000 आइटम्स डालता हूँ तो 1000 की मेमोरी मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी. दैट्स वाई वी कैन एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ जैंक एक्सेट्रा वाइल एलोकेटिंग इतनी सारी मेमोरी अगर मेरे पास 1000 आइटम्स हैं एज्यूमिंग. ठीक है? बट टू सॉल्व दिस इशू व्हाट वी कैन डू इज़, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लिस्ट, मेकिंग अ स्टैंडर्ड लिस्ट व्यू, वी कैन मेक अ ListView.builder. this. So we need to explain this list view ki how to build certain items. So one, it takes item count, so let's make it say 100, and this item builder. So for the second we have to just wait कि यहाँ पे क्या हो रहा है, but it takes 2 parameters. ठीक है? एक तो item count, कितनी items बनानी है मुझे, and item builder is also it also accepts a function, जैसे कि हमने Navigator में डाला था कि how to build these things. ठीक है? कि मुझे बनाना कैसे है, and it accepts 2 parameters. context, it is just out of courtesy कि हम इसमें context inject कर रहे हैं because नीचे कभी यूज़ हो सकता है,
डोंट वरी अबाउट इट. ऑल्सो द इंडेक्स की जो करंट आइटम जो बन रही है, वट इज़ द इंडेक्स ऑफ दैट आइटम, तो इट ऑटोमेटिकली गिव्स अस द एक्सेस ऑफ दैट. ठीक है, लेट्स सी थोड़ा थोड़ा, डोंट वरी. तो आई विल रिटर्न इस फंक्शन में वी विल रिटर्न अ काइंड ऑफ any widget. तो लेट्स ट्राई टू रिटर्न सम टेक्स्ट. ठीक है, इस टेक्स्ट में विल ऐड की आइटम. ठीक है, बस इतना सा. और लेट्स सी, बिकॉज हमें इंडेक्स भी मिल ही रहा है, तो लेट्स ऑल्सो ऐड द इंडेक्स ऑफ दैट आइटम इन दिस टेक्स्ट. तो if I reload this, you can see automatically there are so items which are dynamic in nature are created. But what is the benefit of using list builder? एक तो see it is easy for certain operations. जैसे मुझे 1 से लेकर 100 तक आइटम्स की लिस्ट बनानी थी, it is easy. ठीक है, instead of writing 100 items and it is more readable etc. But it is also lazy in nature in the sense कि अगर मेरी स्क्रीन पे, if you can see कि मेरी स्क्रीन पे अभी only 44 items I can see, but there are total 100 items जो हमें बनानी है. तो इट विल नॉट डू कि 100 की 100 आइटम्स की मेमोरी इट विल एलोकेट एट द इंस्टेंट व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, बट इट विल ओनली क्रिएट दैट बिकॉज देयर इज़ अ मेथड कि मुझे हर एक विजिट को कैसे बनाना है. जो यहाँ पे दी गई है, हर एक एलिमेंट को जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, हर एक को मुझे कैसे बनाना है हर एक को, कि मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट विजिट बनानी है, आइटम और इंडेक्स. मतलब मुझे मेमोरी जब एलोकेट करनी है, तो हर बार जब भी मुझे मेमोरी एलोकेट करनी है हर एक एलिमेंट के लिए, तो मुझे टेक्स्ट बनाना है, उसके अंदर जो उसका करंट इंडेक्स है वो डालना है और आइटम टेक्स्ट डालना है. इतना हम समझ पा रहे हैं. तो जैसे ही मेरी स्क्रीन के अंदर अगर 44 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ 44 एलिमेंट्स की ही मेमोरी एलोकेट करूँगा. जैसे जैसे आई विल स्क्रॉल डाउन, बाकी एलिमेंट्स की मेमोरी तब एलोकेट होगी. तो अगर मेरे पास 10,000 आइटम्स हैं, तो मैं आई डोंट वांट कि मतलब मैं 10,000 की मेमोरी एलोकेट करूँ, बट जितनी जैसे जैसे आई विल स्क्रॉल डाउन एंड as it is required, it will automatically allocate the memory. That's why there is this function to build certain items. ठीक है, we can इतना understand. ठीक है, I feel. बताओ कि we read 2 types of lists. One is normal list view, then is ListView.builder, and we can understand कि one is not lazy, one is lazy in nature. And let's try to build something good out of it. ठीक है, थोड़ा सा कलर इसका let's change it to maybe some tint of blue accent. Let's change it from here थोड़ा सा. Okay, let's try to make something good looking थोड़ा सा, not exactly but let's remove this, या फिर थोड़ा हम थोड़ी अब कोडिंग करते हैं according to me. लेट्स मेक पहले तो ऐप बार विच इज़ नॉट देयर. ठीक है, लेट्स मेक अ मूवी लिस्ट एप्लीकेशन, सिंपल वन. लेट्स कलर दिस बैकग्राउंड कलर, इसका मैं दे देता हूँ काइंड ऑफ, या ओके. सो आई नेवर टोल्ड यू टू स्टाइल टेक्स्ट, आई गेस. लेट्स ऑल्सो शो यू थोड़ा सिंटेक्स इफ़ समवन हैज़ नॉट फिगर्ड आउट. तो इसमें कुछ खास है नहीं बताने लायक, बट दिस इज़ जस्ट द सिंटेक्स टू हाउ टू स्टाइल टेक्स्ट. ठीक है, एंड वी कैन नाउ गिव कलर्स डॉट वाइट एंड फॉन्ट साइज ऑल्सो 24. दैट्स इट. ठीक है, कूल. ओके, so we made this app bar, then we have this background color. app bar का भी हम कलर दे देते हैं, background colors dot let's say blue, and then let's say darken it थोड़ा सा, and body दे ही देते हैं. let's make a simple column. ठीक है, let's keep it empty and you can see there is a simple app जहाँ पे movie list लिखा है and there is a column. ठीक है, now let's add things into this column, या फिर let's directly make a list view only. and add children to this कि there is another element called list tile which you can use. You can add title here which let's say text, then movie name 1. okay, then you can also add subtitle.
ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ। तो देयर इज़ अ लिस्ट जिसमें अभी एक ही वो है, क्या कहते हैं इसे, लिस्ट टाइल है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग वन टेक्स्ट वी मेड अ लिस्ट टाइल विच एग्जिस्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय फ्लटर। ठीक है, लेट्स ऑल्सो चेंज इट कलर थोड़ा सा टू मेक इट लुक गुड। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, then colors dot white, same for this. Oh my bad. Meanwhile let's replicate this, थोड़ा सा 4-5 डाल देते हैं। I guess 2 are enough. क्या हो गया? 1 second यार, सॉरी। Yeah, as you can see कि now यहाँ पे there are 2 list tiles and as the name suggests this is the title and this is the subtitle. Similarly here title and subtitle. Now also let's design थोड़ा सा इसको, let's remove this text and add a row here with children's. Automatically it gave me good recommendation कि इस children में we will have subtitle जो मैं डालना था eventually. Then size box, you guys know size box or you have मतलब played with size box because बहुत सारे लोगों ने मैंने देख लिया था. But if anyone does not know size box, what are size box, it is just a box which is empty and has certain width, that is it, और कुछ नहीं है. You can also make icons like this. तो icon, मैं लिख देता हूँ. तो icon में you can add icons which you want. तो icons dot, there are certain icons, so you can see the preview here. बाकी we will add star, color to it, colors dot ember and font size 16. तो आई गेस एनीवन, अगर मान लो कल को किसी को कोई और विजेट की ज़रूरत है, ठीक है, तो देर इज़ नो नीड टू हेजिटेट टू गूगल सर्च, ठीक है, बिकॉज नो वन कैन टेल यू ऑल द विजेट्स एंड ऑल द सिंटेक्स, बिकॉज ये तो सिर्फ सिंटेक्स ही है, इसमें मुझे बताने लायक कुछ था, तुम्हें भी पता, मुझे भी पता, कुछ इसमें बताने लायक था नहीं, ठीक है. तो लेट्स रेप्लिकेट दिस रो यहाँ पे एंड यहाँ पे ऐड दिस रो सेम. तो वी हैव 2 लिस्ट टाइल्स नाउ, movie name 1, subtitle 1, rating 4.5, 4.5 etc. ठीक है, दिस इज़ गुड. वट आई विल डू नाउ इज़ कि पहले तो बताओ कि ये समझ में आ गया व्हाट आई डिड हेयर, या कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पे? एनीवन हैज़ एनी इश्यूज़? किसी को भी? ठीक है, लेट्स ऐड कंटेंट पैडिंग ऑल्सो. लिस्ट स्टाइल ने कुछ नहीं किया, इट जस्ट ऑटोमेटिकली मेड अ UI फॉर अस इन अ सर्टेन वे कि यहाँ पे टाइटल होगा, यहाँ पे सब टाइटल होगा, दैट्स इट. बाकी इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो मेक इट फ्रॉम स्क्रैच, कि आई मेक अ कंटेनर जिसमें आई विल ऐड कॉलम, उस कॉलम में एक टेक्स्ट ये होगा, एक फिर रो ये होगी. तो you can make it yourselves, but it is just a good way कि जो Flutter ने already we have it has provided us with certain widgets, so we can use them. If you don't want to use them, there is no, so जैसे content padding it already provided, और बहुत सारी properties it has already provided, so we don't have to do that, ठीक है. बाकी it also provides, let's say, leading something like this. So I will tell you what it is कि clip rect. लेट्स सी कि ये कोड क्या करता है, लेट्स वेट फॉर इट, ठीक है, थोड़ा सा. तो एज यू कैन सी लीडिंग क्या करता है, आई विल ऐड अ इमेज ऑल्सो.
पहले तो ऐसा करो, चलो कोई एक अच्छी मूवी बताओ चैट में, सभी बता दो एक एक एटलीस्ट, क्योंकि हम वी हैव टू इवेंचुअली मेक अ लॉन्ग लिस्ट, तो आई विल कॉपी इट फ्रॉम द चैट. एक एक अच्छी मूवी बता दो सभी प्लीज़. इन्फिनिटी कैसल, डूम्सडे, ओके, हिप्नोसिस, इंटरस्टेलर, सिनिस्टर, आई वांट टू ईट योर पेनक्रियाज, ओके, इंटरेस्टिंग, सेवन, डार्क नाइट, कूल, ठीक है. योर नेम, ओके. तो लेट्स गो विद सम रैंडम मूवी. लेट्स से डूम्सडे इमेज. तो let's I am trying to find us. Yeah, so this image looks good to me. कब आ रही है यार? May 2026. Very good. Copy image link, ठीक है, and let's paste it here, image.network, and let's reload this application, ठीक है. So you can see the image from the network is fetched and it is being shown here. अब as you can see कि it मैंने क्या करा कि एक लीडिंग बनाया है. इस लीडिंग में you can add anything. लीडिंग का क्या मतलब है कि जो which is leading the widget, तो this is at the starting of it, तो it automatically provided with certain features, ठीक है. अब this is also another widget which is named clip which does nothing, कि जो इसका जो child है उसको ये clip कर देता है. अब clip कैसे कर देता है कि उसका border change कर दिया इसने. It is nothing to worry about, it is just syntax. You can see it and learn it how you by making on your own UIs and applications, ठीक है. इसका कोई वो नहीं है कि I will go through a book and read anything. This is how it is. तो border radius मैंने डाल दिया. फिर I had a image dot जिसे हमने asset करा था. Now it is image dot network, ठीक है. And then we added the link of the poster which we copied from here. As you can see the poster is now here. Let's change इसका नाम भी to Doomsday, and not sure about what to add in the subtitle, but let's say Avengers, let's say, ठीक है. What I will do now is you have to wait a moment because अब मैं ये सारी ऐड करूँगा जो यहाँ पे बहुत सारी आ गई हैं, आई गेस जितनी हो पाएंगी. इन्फिनिटी कैसल, copy image link, let's replicate this, let's remove this list style, let's add this poster here, let's add infinity castle. इसको अवेंजर्स रहने देते हैं यार. इसका क्या है, डीमन स्लेयर, ठीक है. लेट्स ऐड 4 or 5 मोर, और डूम्सडे, हिप्नोसिस, इंटरस्टेलर, आई एम नॉट श्योर कौन सी वाली है, बट आई एम एडिंग रैंडम वन, ठीक है. अरे एक मिनट, लेट्स कॉपी दिस वन, copy image link and change it to one more which is Yola. Let's change it to Interstellar and let's restart the app, ठीक है. And let's see. So as you can see everything is loaded. Hypnosis wala for some reason is not loading. Let's try again. Hypnosis, let's try maybe this one.
hypnosis, copy image link. Cool, it should work now. Yeah, everything is working. As you can see, we made a movie app with a list, ठीक है, and it is, if I try to replicate it थोड़ा सा और, just for the sake of it, नई movies नहीं डालूँगा, but I will just copy it down 4 or 5 times and reload this. तो there is a list of movies which we have, ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है ना? एवरीथिंग इज़ ओके है ना? कूल. हाँ, तो वी हैव अ लिस्ट, वी हैव मूवीज़, बट एज यू कैन सी कि मैंने तो अभी 10-12 मूवीज़ ही ऐड करी हैं, एंड 370 लाइन का कोड है. एंड अनदर थिंग, कोड लंबा होना इज़ नॉट एन इशू, बट द पॉइंट इज़ कि कल को अगर मैं इसका लेट से बॉर्डर रेडियस जितना है टाइल का चेंज करता हूँ टू 12, तो इसका तो चेंज हो गया, मुझे बाकी की 50 का भी चेंज करना पड़ेगा मैनुअली जाके. दिस इज़ ऑब्वियसली अ सर्टेन इशू जो वी हैव टू टैकल, एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रीडेबल. कुछ भी चेंज होता थोड़ा बहुत, तो आई हैव टू go back again and again for all of them to change. To solve this issue, let's do something. Let's first तो इस lib folder में let's make a screens folder, ठीक है, and move the new screen we made यहाँ पे just for arrangement. This is not a perfect way to arrange anything, ठीक है, but for the sake of this lecture, अभी जितना हमें knowledge है, we will try to do इतना, ठीक है. We will make a widgets folder, and what we can do is create a new file which is let's say my movie list style.dart, ठीक है. Now you can make a stateless widget again, or for the sake of it let's try to make a stateful widget and then name it my movie list style, ठीक है. इतना हम सभी कर सकते हैं. अब यहाँ पे I will paste the code जो मुझे चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट स्टाइल का है. तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रीयूजेबल कोड जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. हाउ आई विल टेल यू, बट देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स, जैसे कि इसकी रेटिंग हुई, या जैसे एवेंजर्स, डूम्सडे, या इमेज डॉट नेटवर्क जो इमेज हमें डालनी है. दिस इज़ थिंग्स जो डायनेमिकली आनी चाहिए यहाँ से. तो मैं यहाँ से बेसिकली वी कैन प्लग इट इन अ सिमिलर वे जो हमने जैसे वहाँ पे करा था, ठीक है, कहाँ पे न्यू स्क्रीन में जब हम वेरिएबल्स पास कर रहे थे. तो लेट्स ट्राई टू डू दिस. फाइनल स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग सब टाइटल, इमेज URL, एंड कुछ रह गया क्या, स्ट्रिंग रेटिंग. कूल. एंड लेट्स डू दिस ऑल्सो. बाय द वे थोड़ा सिंटेक्स याद कर लो अगर किसी को समझ में आया. बट दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑन विच वी कंस्ट्रक्ट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है. फॉर नाउ इतना ही इज सफिशेंट. तो रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, रिक्वायर्ड दिस डॉट सब टाइटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हमने वेरिएबल्स बना लिए. नाउ वी कैन यूज़ दिस वेरिएबल्स हेयर विच विल डायनामिकली कम. कहाँ से वो मैं बताता हूँ कहाँ से. इमेज URL यहाँ पे. ओके, सो वन थिंग इज़, अनदर थिंग इज़ कि व्हेन यू आर मेकिंग स्टेटफुल विजिट्स, तो यू हैव टू राइट widget डॉट इमेज URL वाइल यूजिंग द वेरिएबल. कहाँ पे, जैसे यहाँ पे इमेज URL वाला वेरिएबल था, ये वाला जो हम वहाँ से लेंगे, उस स्क्रीन से, मेन स्क्रीन से लेंगे. तो यू हैव टू राइट widget डॉट इमेज URL, बट इफ़ इट हैड बीन अ स्टेटलेस, what do you mean by stateless widget, then you could have just written image.url, ठीक है. This is something जो we need to encounter, ठीक है. Let's write widget dot title, widget dot subtitle, and widget dot rating. Everyone understood मैंने क्या करा है? मैंने एक folder बनाया है widgets का. It is not necessary to make a folder, but it is always good to make one. We made a new widget which is named my movie list style. Then we made a stateful widget. You could also have made stateless, but eventually for the next app, next class we have to maybe make it stateful eventually, ठीक है. Then title, subtitle, image URL, rating, everything is good. यहाँ पे ये मैंने नए वेरिएबल्स बना लिए, यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्टर में डाल दिए. नाउ आई यूज़ दोज वेरिएबल्स हेयर जो डायनेमिकली आएंगे. अब इंस्टेड कि मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँ विच इज़ this doomsday and 4.5 etc, I will use my custom made my movie list style, ठीक है. Now I just have to pass these variables which are say title, which was I guess doomsday, then it was Avengers, ठीक है.
Now I can remove this whole list style and similarly clone this down like this and basically add my content यहाँ से and I can remove ये सारा झंझट जो हमने बनाया है. So we are basically recycling these widgets. Instead of writing this code again and again, we are reusing this code. There's nothing complex in this. And बाकी ये images आप डाल लेना सही. And let's see. So now if I have to change, let's say anything, maybe the border radius to let's say 30, then I have to just change it once. And you can see सबका border radius is now 30. Or if I have to do it let's say 1, तो सबका border radius is now 1. This is code reusability, very simple. बाकी लेट्स सी कि अब बच क्या गया है. और पहले किसी को बताओ कि इसमें कोई डाउट है क्या कोड रीयूजेबिलिटी में और लिस्ट्स बनाने में, नेटवर्क इमेजेस या जो भी हमने करा थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग. किसी को कोई इशू है? लेट्स सी स्लाइड्स में क्या है. ListView.builder, लेज़ी, सेपरेटेड. ओके, तो इसको थोड़ा देख लेना. बाकी मैं ऊपर से बता देता हूँ. इसमें देयर इज़ नथिंग डिफरेंट. ListView.separated, बिल्डर की जगह भी रोट ListView.separated. बाकी सारा कुछ यू कैन सी आइटम काउंट इज सेम, आइटम बिल्डर इज सेम, बट देयर इज़ अनदर पैरामीटर विच इज़ सेपरेटर बिल्डर. तो बेसिकली इट मेक्स अ सेपरेटर अक्रॉस ऑल ऑफ दीज. हाउ? लेट मी शो यू. बता ही देता हूँ. तो लेट्स रिमूव दिस एवरीथिंग हेयर. यहाँ से लेट्स मूव ListView.separated and then we have an item builder तो होगा ही with the context and index and I will return my movie list यहाँ पे. ठीक है, चलो ठीक है. and कहाँ गया? okay, so I also need an item count which is let's say 20 and I also need a separator builder to make a separator. Similarly, exactly same syntax as the item builder, but we can add anything which will come in between each tile. ठीक है, तो there is a divider यहाँ पे which we made. This is how you made a divider, make a divider. So as you can see now यहाँ पे when it reloads you should see a divider यहाँ पे which I'm not seeing. Let's make it amber. Yeah, you can see now there is a divider across all of these. Images load नहीं हो रही हैं because वो गलत है URL, but you got the point कि there are dividers now. ठीक है. why we did this कि मतलब मुझे एक अलग डॉट सेपरेटेड बनाना पड़ा, फिर यहाँ पे सेपरेटर बिल्डर लिखना पड़ा. दो आई कैन जस्ट रैप दिस विद अ कॉलम like this. Now I have a tile and I can also add divider here and I can remove this. Let's make this builder. You can see same effect है. It is just for the sake of it, out of courtesy they made it, because you can see कि 19 में टाइल के बाद भी there is divider which we don't need. तो या तो आप ऐसा करो कि ऐसा लिख दो यहाँ पे लॉजिक कि if, वो भी कैसे लिखना है कि if the tile is let's say 19th, तो index अगर my index is 19th then don't make anything. Index is 19th, don't make anything. मेरे headphones बंद हो गए हैं I guess. Wait a second. Are you guys able to listen to me? Hello. Hello. One second. Hello. Low voice. 1 second. Sorry for the inconvenience, but 1 second please. Okay. आवाज़ आ रही है आई होप. एंड कोई बोलेगा क्या एक बार प्लीज़, कुछ भी रैंडम. ओके, गॉट इट. ठीक है. Hello. तो द लास्ट थिंग आई वांटेड टू से कि either you add logic कि if index equal to 19 then add nothing, basically string box size box dot string adds nothing, and then a divider. तो या तो ये
कस्टम लॉजिक लिखो आप बैठ के, या फिर जस्ट यूज़ द थिंग्स प्रोवाइड बाय फ्लटर, दैट्स इट. बाकी देखो नाउ देयर इज़ नो मोर अभी भी है, नॉट श्योर बाय. ठीक है, आई गेस रिलोड नहीं हुआ ढंग से, बट द यू गॉट द पॉइंट कि हमने लिस्ट बना ली हैं एंड वी अंडरस्टूड लेजी लोडिंग एक्सेट्रा, हाउ दे आर बिल्ट, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट विजिट and store it into a different screen, etc. And yeah, so listen to the assignment right now. थोड़ी गुड असाइनमेंट इन, मतलब कुछ सोचने लायक ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है. यू कैन ऐड योर क्रिएटिविटी एज यू वांट, बट व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि आई वांट टू मेक अ स्क्रीन वेयर आई विल हैव बेसिकली द टाइटल वगैरह तो डाल ही देना जो भी डालना है. दिस इज़ द बटन्स विच वी नीड टू मेक. वन इज़ एक्शन गेम्स, RPG एडवेंचर्स एंड द लीडर बोर्ड. तो यहाँ पे देर वुड बी थ्री डिफरेंट बटन्स एट द सेंटर, जिसका नाम मैं बता दिया, द एक्शंस बटन एंड एक्शन गेम्स, RPG एडवेंचर्स एंड लीडर बोर्ड. ठीक है, क्लिकिंग ईच ऑफ दिस बटन्स इट विल गो टू अ डिफरेंट स्क्रीन. ठीक है, 3 डिफरेंट स्क्रीन्स फॉर एक्शन बटन्स, एक्शन गेम्स, एडवेंचर, RPG गेम्स एंड थर्ड वन इज़ जो भी लीडर बोर्ड. ठीक है, एंड फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट स्क्रीन्स देयर विल बी लिस्ट्स इन ईच ऑफ द स्क्रीन्स. अब हर एक स्क्रीन्स में लिस्ट होगी, जैसे हमने आज बनाई है विद द टाइल्स एक्सेट्रा, एंड उसमें इमेजेस होंगी ऑफ योर गेम्स, जो एक्शन गेम्स हैं, टाइटल्स वगैरह, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. You guys are better gamers than me obviously. And similarly for leaderboard and etc, 3 screens, 3 buttons, 3 screens, and each of those screens will have lists. ठीक है, this is the simple task. If someone wants to do a little better, जैसे मैंने बताया कि एक तो आप पहली मेन डॉट आउट बनाओगे, उसमें आपके 3 बटन्स होंगे. अब तीनों बटन्स जाएंगे अलग अलग स्क्रीन पे, उसके लिए आपको 3 डिफरेंट पेजेस बनाने पड़ेंगे. तो ऐसा लेट्स से एक्शन गेम स्क्रीन डॉट डाट एक्शन, फिर RPG गेम स्क्रीन गेम डॉट डाट. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो इंस्टेड इतना जो तुम्हें बताया वो कर लेना, दैट इज़ इनफ. बट इफ़ समवन वांट्स टू एक्सपेरिमेंट थोड़ा और, तो instead of making 3 different screens, 3 different files, create a generalized file. ठीक है, category, let's say category underscore games underscore screen dot dart. ठीक है, तो एक सिंपल स्टैंडर्ड स्क्रीन जिसके अंदर यू कैन इंड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, कि जिसके मतलब मैं यहाँ पे एक्शन बटन वाला पेज दबाऊँ तो ऊपर लिखा हो एक्शन गेम्स वाला बटन दबाऊँ तो ऊपर लिखा हो एक्शन गेम्स, उसके बाद नीचे एक्शन गेम्स आए. तो मेक अ जनरलाइज सिंगल स्क्रीन instead of making 3 different one. You can also try this. If you don't want to, then make 3 different screens. Each of them will have lists of action, RPG, etc. ठीक है, तो this is the assignment which we are giving. बाकी ये तो you guys know कि यहाँ पे upload हो जाएगा. बाकी if you guys have any questions right now. I had a question कि Navigator.push और Navigator replacement में हमें preference कौन सा रखना चाहिए? Preference Because किसको let's say रखना if चाहिए? That depends तो on ना कि what you are doing. Let's say there is a login flow. ठीक है, login और sign up flow. ठीक है, तो if you are one second. How was the class today? Could you wait for a moment? Yeah, sure. W classes yesterday, cool. the class. What? Great class had. No, the class. Cool. Anyone has any doubts or anyone wants to ask anything? उस दिन याद है एक एप्लीकेशन बनाया था मैंने, वो रिक एंड मॉर्टी वाला. Yeah. तो उसमें मैंने इवेंचुअली क्या किया था कि वो मैंने डिस्प्ले किया था ना API फेच करके. Yeah. But what if I use that similar API, but अब मैं क्या कर रहा हूँ कि clicking on each of those characters, Yeah. it opens up a detailed view of the characters. So let's say अगर Rick पे click किया तो it shows about Rick, it shows Morty. तो उस केस में मुझे dot replacement करना चाहिए या dot push? Because what I was thinking is push कर रहा हूँ, then I would also like to go back. Yeah. But then push से कहीं ना कहीं मेरा storage and memory efficient नहीं हुआ ना, वो एक तरीके से मैं ये पूछना चाह रहा था. Okay, so this is something, if you want to do storage efficiency etc, तो उसके लिए have to do certain new things, कि you want to make a singleton pattern. Why, पहले तो बताओ why it is not storage efficient according to you, या memory efficient, what you wanted to say. मैंने ये सोच के बोला कि because there's around like I also chose of maps.
and Okay. there's around 28 maps that is given as of now, and some more locations are to be added since a new season has come out this week. Okay. So उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि let's say on a slower end phone, Yeah. someone tries to open each of them, Yeah. that is eventually trying to create a multiple number of blocks in the stack. I mean, with Yeah. that aspect, I was thinking it might slow down their phone since a No, lot of no. RAM So might get that used is up. not your issue कि अगर बहुत Okay. सारे वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, why would it basically, let's say there is a first screen which is a screen A, and it has, let's say, 50 Mm-hmm. characters of Rick and Morty, ठीक है. Then you go to Okay. then you click on the first character which is Rick, you go to the second screen, ठीक है. And as a user I want to come back and also see Morty's detail, ठीक है. तो I will come back from that page. तो अब तो वो जो Rick वाला पेज था, it popped from the stack. अब there is only one element in the stack, and then I will go. Oh, Yeah, so at any moment there are okay. max two elements, so there is no issue for the memory. Okay, then it's okay. Yeah. Anyone else? Okay, thank. That's it, I guess. Okay. Let's meet again. Sure. Thanks for the class, man. Sure, bhai. Okay.